نواز شریف کے حوالے سے جنہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل کے سربراہی اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ سی پیک پاکستان کا بہترین منصوبہ ہے، اس پر بات اور اس کے علاوہ بات ہوگی اڈیالہ جیل میں جو نہیں ملنے دیا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کو۔ عمر ایوب کافی برہم اور غصے میں دکھائی دیے پریس کانفرنس کے دوران۔ سب سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ویسے تو ایک دن پہلے روسی صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس شنگھائی تعاون تنظیم میں پریزیڈنٹ شی بھی موجود تھے اور ساری سینٹرل ایشیا کی ساری ریاستوں کے صدور بھی وہاں موجود تھے، ٹرکی کے طیب اردگان بھی موجود تھے، لیکن انڈیا نہیں گیا وہاں۔ مودی صاحب نے اسکپ کیا، حالانکہ برا ٹائم چل رہا ہے وزیر اعظم حالانکہ بھارت ایس سی او کا ممبر ہے اور آپ کو پتہ ہے جب ایس سی او کا ایک اجلاس انڈیا میں ہوا تو بلاول صاحب فارن منسٹر تھے، وہ گئے تھے، پھر سربراہی اجلاس ورچوئل ہوا، بڑا کرٹیسزم تھا تو اب مودی صاحب نے اسکپ کیا اس میں اور مودی صاحب نے شرکت نہیں کی، لیکن باقی تو ملاقاتیں ہیں۔ لیکن اصل میں اس تنظیم کے اجلاس میں شہباز شریف نے فلسطین کے مسئلے پر 2-3 دفعہ بہت کھل کر بات کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ سنوا دیں تو پھر بات ٹھیک ہے، آڈینس کو سنواتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے حوالے سے کیا کہا۔ Over 37,000 innocent civilians, mostly women and children, have been killed, and over 2 million have been displaced by Israel's indiscriminate and unabated bombing. SCO must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire leading to the implementation of the two-state solution, which includes the establishment of the Palestine as a viable, secure and contiguous state on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. مزمل صاحب فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے، انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتنے شہید ہوئے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کی جائے ایس سی او کے پلیٹ فارم سے، اور فلسطین کا مقدمہ انہوں نے پورا لڑا، اور وہاں جب یہ وہ کر رہے تھے تو روسی صدر پوٹن بھی موجود تھے، پریزیڈنٹ شی بھی موجود تھے، اور سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی مذمت کریں اور فلسطین کی جو ریاست ہے وہ 69 کے پہلے والے بارڈرز کے مطابق بحال کی جائے اور وائبل۔ اچھی بات ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر فلسطین کا مقدمہ لڑنا چاہیے اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بات کرنی چاہیے فلسطین کے بارے میں۔ ہم اپنے مفاد کی بات تو کرتے ہیں، پوٹن سے ہماری تیل مزید امپورٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، انرجی زراعت پر تعاون کی بات ہوئی ہے، سی پیک کی بات ہوئی ہے، سینٹرل ایشیا ریاستوں کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ پر بات ہوئی ہے اور کافی کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فلسطین پر بات ہونی بہت ضروری تھی اور شہباز شریف نے کی ہے، تو ہم نے کہا لوگوں کو افغانستان کا ایشو بھی اٹھایا، افغانستان کا ایشو، افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، وہ بات بھی وہاں شہباز شریف نے بہت زور سے اور زور دے کر کہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کی پریزنس ایس سی او میں اب بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو ایس سی او کی کانفرنسز ہیں یہ اب اکتوبر میں اس کا اگلا اجلاس پاکستان میں ہوگا اسلام آباد میں، اور اس میں دیکھیں مودی صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، باقی سب تو آئیں، تو اگر مودی صاحب بھی آ جائیں تو پھر بات ہے، اور اگر مودی صاحب وہ بھی اسکپ کرتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کی بات۔ اڈیالہ جیل میں آج 2 گروپس کی ملاقات تھی اور یہ گروپس میں اختلافات ختم کروانے کے لیے عمران خان سے ملاقات تھی، اسکیجول تھی، اجازت دی گئی تھی عدالت کی جانب سے، لیکن ملنے نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑا ہی انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے، غصے میں انہوں نے کہا کہ دوپہر 1:15 بجے سے ہم انتظار کر رہے تھے لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ شہریار آفریدی نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے نا یہ پی ڈی ایم، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل تک عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جیل میں ہم نے اس لیے تو نہیں رکھا کہ آپ عیاشی کریں، وہاں سے سیاست کریں، مشاورتیں ہوں، وہاں سب کچھ ہو، تو وہ خود کہتے تھے کہ جیل میں تو سزا کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب حکومت بدلہ لے رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جیل مینول میں مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ دونوں گروپس کو بلا کر جیل میں صلح کرائے گا۔ ان کے کئی الزام ہیں جو سچ نہیں ثابت ہوئے، مثلا وہ کہتے تھے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو خود امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی قوم ان سے سوال کر لے کہ بھائی امریکہ تو آپ کے ساتھ ہے، امریکہ تو آپ کے لیے کانگریس میں قراردادیں پاس کر رہا ہے، آپ کل دوسروں کو کہہ رہے تھے وہ امپورٹڈ ہے، تو سب سے بڑے امپورٹڈ تو آپ خود ہیں۔ تو مجھے خان صاحب کے الزامات میں کچھ سچائی نظر نہیں آتی ہے کسی بھی وقت۔ وہ وقت اور ضرورت کے تحت اپنی بات کرتے ہیں اور آپ جیسے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، پھر 6 مہینے بعد جب ہم کہتے ہیں جھوٹ ثابت ہو گئی ہے تو آپ ہمیں مسکرا کر دکھا دیتے ہیں۔ جب امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہوتی ہے تو پھر ہماری حکومت اسے مداخلت کہتی ہے، اور جب سائفر آتا ہے تو پھر ہماری
हमारी यही हुकूमत जब नहीं थी हुकूमत में तो अपोजिशन से पाकिस्तान के मुदाखलत नहीं मानती थी। साइफर लिखा पाकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तान की हुकूमत को, वो कोई अमेरिका ने नहीं लिखा, वो पाकिस्तान के सफीर ने अपनी हुकूमत को एक खत लिखा, वो मुदाखलत नहीं है। और डोनाल्ड नून ने उसकी एक्सप्लेनेशन भी फिर नहीं, और अमेरिकी कांग्रेस का जो करारदाद है वो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद मुदाखलत है। दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें, नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश नहीं, हमें यहाँ फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जेल मैनुअल के तहत ये सुलह की मुलाकात नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब अगर अदालत ये इजाज़त दे दे कि बानी पीटीआई को जेल में बैठकर अपने ग्रुपों में सुलह कराने की भी इजाज़त है, तो वो फिर तमाम कैदियों को देनी चाहिए। जिनके घरों में भी तनाज़ात हैं, जिनके भी कारोबारी तनाज़ात हैं, वो कल को अदालत को कह सकें कि हमें अदालत जेल में पंचायत लगाने की इजाज़त दे दें, हम दो धड़ों की सुलह कराना चाहते हैं। मुज़म्मिल साहब, इंसाफ की बात तो ये है कि आम मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जाती, बड़ी देर वकला को ख़वार होना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मुलाकातें रिकॉर्ड पर इमरान खान साहब की हुई हैं। नवाज शरीफ साहब की नहीं होती थी? नहीं, हफ्ते में तमाम सियासी मुलाकातों पर पाबंदी थी, सिर्फ घर वाले मिल सकते थे हफ्ते में एक दिन 40 मिनट के लिए। बड़ी लंबी तवील मुलाकातें थी जो हुआ करती थी, खाने भी वहीं पर खाए जाते थे। नहीं, क़यादत नून लीग की वहाँ आया करती थी। घर से आने की इजाज़त जेल में हज़ारों कैदियों को है, सैकड़ों कैदियों को इस वक्त है, उसकी जेल रूल्स में इजाज़त है। वो जो जेल रूल्स में इजाज़त है वो ये भी घर से मंगवा लें जिन्होंने कुक वहाँ रखा हुआ है, कुकड़, और ये भी खा रहे हैं। अब हुकूमत चूंकि जो इमरान खान ने एतराज़ात उठाए थे अपनी हुकूमत के दौरान, ये तमाम हुकूमत उसी फॉर्मूले पर अमल कर रही है। नहीं, मेरे ख्याल में लगता बड़कपन का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी निस्बत इमरान खान को बहुत अच्छा रखा गया जेल में। नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं एसी है भी या नहीं जेल में, बड़कपन का मुजाहरा करना चाहिए, एसी लगवा दे। उन्हें कैसे पता हो सकता है? यहाँ तो पंखे बंद करा दिए जाते हैं। नहीं, आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने एक जेल से खत लिखा मुझे उस वक्त कि मुजम्मिल जून जुलाई की जून का एंड था कि ये रात को मेरे बैरक में शीरा फेंक जाते हैं जिसके ऊपर कीड़े चलते हैं, तो मैं जुराबें और दुस्ताने पहन के सोता हूँ कि रात को मुझे काटे ना, और टोपी पहन के। मेरे पास उनका वो खत मौजूद है। परवेज़ इलाही साहब की अहलिया ने भी बताया उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप मेरी बात समझिए, तो जो कुछ इमरान खान साहब करते रहे हैं उनके साथ वो नहीं हो रहा। मकाफात अमल आप भी मानते हैं? मकाफात अमल तो फिर निज़ाम कुदरत है ना जी। तो फिर अब अमेरिका की मुदाखलत को भी फिर आप मकाफात अमल के साथ करें ना फिर। तो असल बात ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात हो भी नहीं सकती। इस तरह धड़ों में बैठकर कोई कैदी सुलह नहीं करा सकता। कैदी के पास ये इख्तियार नहीं है, फिर सारे कैदियों को दे दें, और हुकूमत को चाहिए कि आम कैदियों को कहें कि आप जेल से अपने कारोबार भी कर सकते हैं, आप जेल से अपनी सुलहें भी कराएं, आप जेल से लड़ाइयाँ भी लड़ें, आप सभी जेल में अपना दफ्तर खोल लें, सब कैदियों को ये इजाज़त होनी चाहिए। तो एक नुक्ता मैं यहाँ पर उठाना चाहूँगी जिसकी तरफ शहरियार अफरीदी साहब ने इशारा किया है कि वाकई में पीडीएम फिर इख्तलाफात चाहती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर, क्योंकि वैसे तो शहरियार शिकस्त नहीं दी जा रही तरीके इंसाफ को। शहरियार अफरीदी साहब दूध पीते बच्चे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं उमर अयूब के साथ? वो क्यों कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? उन्हें नहीं समझ के उनका लीडर अंदर है, ये वक्त लड़ने का नहीं है। फवाद चौधरी साहब क्यों लड़ रहे हैं? पता नहीं, वो सब इमरान खान के साथ है। जो इमरान खान को लीडर कहता है वो नीचे। असल में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में बदतमीजी का एक कल्चर पैदा किया है। वो कल्चर अब उनकी अपनी पार्टी को खा रहा है। अच्छा? आप मेरी बात सुनिए, जब पहले वो ये बदतमीजी अपने मुखालिफ सियासतदानों से के खिलाफ कराते थे, अब ये बदतमीजी ये आपस में शुरू हो गई है, सब एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। इख्तिलाफ राय तो होता है, हर पार्टी में होता है। नहीं, बदतमीजी भी तो होती है ना। वो देखे ना, वो उनको हथनी कहता है, वो उनको ड्राइवर कहते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी कोई कहता है। ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में एक दूसरे, ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के किसी बंदे को तो ये बात नहीं कहते, कह रहे थे, लेकिन ये तो आपस में लगे हुए हैं, मैं तो आपस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह शहरियार अफरीदी जो उमर अयूब साहब के बारे में कहते हैं, और शंदाना गुलजार जो गंडापुर साहब के बारे में कहती हैं, वो इख्तलाफात नून लीग पैदा कर रही है। नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी जब नून लीग का हिस्सा थे तो उन्होंने भी सागदार के बारे में कोई अच्छी बातें तो नहीं की थी। सर वो आपस के इख्तलाफात होता है, हाँ, लिहाजा, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि मिफ्ता इस्माइल और सागदार की लड़ाई पीटीआई ने कराई है। वो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर ये कहते पीडीएम ने कराई है। अच्छा, ये बैरिस्टर सैफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम शरीफ खानदान में वजारत उज़्मा की जंग जारी है, मतलब वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनमें भी जंग जारी है। शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, अच्छा, और मरीम नवाज वजीर आला है। कोई जंग मुझे तो नजर नहीं आ रही। सागदार साहब को जब डिप्टी वजीर आज़म बनाया तो उसके बाद वजीर आज़म नहीं बन सकते क्योंकि वो सेनेट के रुकन है। वजीर आज़म सिर्फ कौमी
डिप्टी तो बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। तो लड़ाई तो ना हुई। लड़ाई तो तब होगी जब वो कौमी असेंबली के मेंबर आप तरदीद कर रहे हैं, ठीक है ना। लड़ाई तो तब वो होगी, कौमी असेंबली में तो कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं। लिहाजा मेरे ख्याल में बैरिस्टर सैफ साहब गंडापुर की कारकर्दगी, आप देखें ना, आज मुराद अली शाह साहब ने कई घंटों पर तवील अपनी कारकर्दगी बताई है। उन्होंने क्या कहा, हम थोड़ा सा वो अपने अवाम के सामने रखते हैं, जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि जी सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है और थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। फिलहाल कराची की तो किस्मत बदल रही है मुराद अली शाह साहब, ये मरियम नवाज साहिबा के नक्शे कदम पर तो नहीं चल पड़े। जो थर में काम हुआ है वो काबिल सताइश है। हम ये नहीं कह सकते कि थर में कोई गलत काम हुआ है, जो थर में काम किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ये उन्होंने अपनी ना को 12-13 साल की कारकर्दगी बताई है। 100 मरियम नवाज ने इन 100 दिनों की बताई थी, उन्होंने अपनी मुकम्मल, चूंकि उनकी ये तीसरी टर्म है। पानी तो साफ मिलता नहीं है सिंध में, कराची में, उनको उस पर तो काम करने के अभी बिल्कुल कराची के हवाले से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन उन्होंने आज कराची के बारे में कम और थर के बारे में और सिंध के बारे में ज़्यादा बात की है और वहाँ की कारकर्दगी बताई। लेकिन सूबाई हुकूमतों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए ट्रू। और हमें इनको इनकी कारकर्दगी के से ही इनको अच्छा या बुरा कहना चाहिए। हमें इनकी शक्लें या पार्टी पर नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि किस हुकूमत की कारकर्दगी कितनी अच्छी है, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के पास पैसे सूबों के पास हैं, काम सूबों ने करने हैं, वसाइल सूबों के पास हैं, डिलीवर सूबों ने करना है, तो सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट।